جیسے گریب کر رہے ہیں، ہر سلیبس کی اپنی ایک لینگویج ہے، ہر سلیبس کو ایک ہی طرح سے نہیں پڑھا جا سکتا، ہر جو سبجیکٹ ہے اس کے اپنے ایک پیرامیٹر ہے. آپ اکنامکس کو اکاؤنٹنگ کی طرح نہیں پڑھ سکتے، اکاؤنٹنگ کو آپ لا کی طرح نہیں پڑھ سکتے، تھیوری کو آپ میڈیکل سبجیکٹ کی طرح نہیں پڑھ سکتے. دونوں کو پڑھنے کا سٹائل، تیاری کا سٹائل فرق ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے اور خود بھی آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ لوگوں کا کوئی ایسا کویشچن جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہو کہ آپ کو آگے کیسے بڑھنا ہے یا کوئی ایسی کنفیوژن ہے آپ کو، تو آپ ابھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جی بچے کھل کے بات کیا کریں. آپ یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے سی ایس کا کہ ہم میں شائنس بہت زیادہ ہوتی ہے. ہم گھبرا جاتے ہیں کہ ہم بولیں گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے یا ہم سے بولا نہیں جائے گا، ہماری انگلش ویک ہے. ان چیزوں کو چھوڑ دیں، کھل کے بات کریں، ٹیچر کو اپنا بڑا سمجھیں، ٹیچر کو اپنا سرپلس سمجھیں، اور جو آپ کے پرابلم ہے کھل کے ڈسکس کریں تاکہ آپ کی جو لائن ہے وہ سیٹ ہو جائے. اگر آپ کلیئر بات نہیں کریں گے تو آپ الائنمنٹ جو آپ کی ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوگی، آپ الائن نہیں ہوں گے، جلدی آپ کو ٹائم لگ جائے گا، آپ ٹائم ویسٹ کر جائیں گے. تو اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے، کسی بھی قسم کا کویشچن ہے کہ ہاؤ ٹو پروسیڈ، آج سے کل آپ نے کیا کرنا ہے، پرسوں کیا کرنا ہے، میں کیسے شروع کروں، کوئی بھی ایسا کویشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ بریفلی میں آپ کو ایک آئیڈیا دے دوں کہ آپ نے اس پروفیشن کو ٹیک اپ کیسے کرنا. ٹھیک ہے جی. سو اینی کویشچن؟ بیٹا دیکھو پروفیشنل اسٹڈیز میں یہ ہمارے بڑا مسکنسیپشن ہے کہ کتنے گھنٹے پڑھنا چاہیے. آج سے اپنی روٹین بنا لیں کہ گھنٹے میٹر نہیں کرتے، ٹارگیٹ میٹر کرتا ہے. میں نے آج کور کیا کرنا ہے، اگر وہ آدھے گھنٹے میں کور کر لیا تو آدھا گھنٹہ بہت، اور اگر وہ 4 گھنٹے میں بھی کور نہ کر سکے تو 4 گھنٹے بھی ویسٹ ہو گئے. تو پہلے تو آپ نے پلان کرنا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا مشکل ہے. مشکل چیزیں زیادہ ٹائم لیں گی تھوڑا سا، آسان چیز جلدی ہو جائے گی. ایک آسان چیز میں اگر آپ 2 گھنٹے دے دیتے ہیں تو آپ نے غلط کیا. مشکل چیز کو آپ صرف 10 منٹ دیتے ہیں تو بھی آپ نے غلط کیا. تو آج سے اپنی ایک عادت بنائیں کہ گھنٹے شنٹے والا کوئی چکر نہیں ہے. سی اے میں کسی بھی پروفیشنل ڈگری آپ دیکھیں کہ اس کی نیڈ کیا ہے، یہ آپ سے کتنے گھنٹے اور کتنی ایفرٹ مانگتا ہے. آپ ایفرٹ کو بیس کریں، آپ کہیں کہ یہ میں ایک دن میں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور اتنا ہی رکھیں کہ آپ کو اننیسیسری نہ پڑھنا پڑے. یہ یاد رکھیں، آپ روز 6 گھنٹے پڑھیں گے نا تو پہلے 10 دن تو پڑھ لیں گے، 11 دن آپ ایگزاسٹ ہو جائیں گے. آپ نے کبھی مجھے فیل کیا ہے کہ 11 دن آپ اتنے تھکے ہوں گے کہ پھر اگلے 4 دن آپ ضائع کر دیں گے. تو کیوں کرتے ہیں ایسے؟ آپ روز 1 گھنٹہ پڑھیں، لیکن روز 1 گھنٹہ پڑھیں، پھر 30 دنوں میں 30 گھنٹے ہوں گے تو 30 گھنٹے پڑھا. اگر آپ نے 10 دن 6 گھنٹے میں پڑھا تو 10 سے 60 گھنٹے. ٹھیک ہے. اگلے آپ اتنے ایگزاسٹ ہو گئے کہ اگلے 6 دن ضائع کر دیے. اور اگر آپ 6 گھنٹے پڑھیں گے یا آپ صرف 1 گھنٹہ پڑھیں گے تو آپ کی لرننگ اور آپ کی جو ان پٹ ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوگی 6 گھنٹے سے، یا 1 گھنٹہ ٹک کے بیٹھنے سے زیادہ اسٹرانگ ہوگی. یہ اپنے آپ سے فیصلہ کریں. آپ کم پڑھیں، فریشنس آف مائنڈ کے ساتھ پڑھیں تو زیادہ سمجھ آئے گی اور زیادہ گرپ ہوگی. زبردستی بیٹھے رہیں گے پڑھنے پہ تو ایک لیول آئے گا کہ آپ کا دماغ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہوگا اور آپ پڑھ رہے ہوں گے تو کیا فائدہ ایسی پڑھائی. ٹارگیٹ سیٹ کریں، ٹیچر سے ڈسکس کر کے خود دیکھیں کہ آج میں نے یہ چیزیں کور کی. اگر آپ آدھے گھنٹے میں کور کرتے ہیں تو آدھا گھنٹہ ہی بہت ہے. تو یہ چیز بہت ذہن میں رکھنی ہے کہ آج روز والا کوئی چکر نہیں ہے، کوریج کا چکر ہے کہ آپ چیزیں کور کرنی ہے. اس کا ایک پلان تیار کرنا ہے ساتھ ساتھ. ایک بار باقی یہ ہے کہ کبھی گھنٹے ایک دن میں 4 بھی ہو جائیں گے، کسی دن یہ 2 ہوں گے، کسی دن 6 ہوں گے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا ٹاپک چل رہا ہے ہفتے میں. جن دنوں میں مشکل ٹاپک چل رہا ہے 8 گھنٹے بھی بیٹھیں اسے کور کریں. جن دنوں میں ذرا آسان ٹاپک اور سمجھ آ رہی ہے یا آپ الائنڈ ہو چکی ہیں چیزوں میں، آپ کی اسپیڈ بن چکی ہے تو 2 گھنٹے میں آ جائیں. کلیئر ہے. تو بہت کلیئرٹی ہونی چاہیے اور یہ ایسا سامنے آ جائے گی. آج والا کوئی چکر نہیں ہے. دوسری بات، میں تو ساری رات یا رات کو میں کبھی نہیں پڑھ سکتا، میری نیچر ہی نہیں ہے رات کو پڑھنے کی. لوگ تو ساری رات پڑھتے ہیں، میں نے کبھی ساری رات نہیں پڑھا. ساری رات میں 10-11 بجے کے بعد میں کبھی نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے. 10-11 بجے کے بعد میں نہیں پڑھتا. میں نے جب بھی پڑھا دن میں پڑھا یا صبح اٹھ کے پڑھ لیا، اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی ایک وقت میں 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ پڑھا. میں پڑھ ہی نہیں سکتا. لیکن پلان کیا، سوچا کیا، ٹارگیٹ بنائے تو فوراً پلان کر دیا. تو یاد رکھنا ہے کہ آج ٹائم بالکل کوئی چیز نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ آپ کا ٹارگیٹ ہے. اس ٹارگیٹ کو فوکس کریں اور ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. ٹارگیٹ بھی ایسا ہونا چاہیے جو کہ آپ اچیویبل ہو. زبردستی کا ٹارگیٹ سیٹ نہ کریں کہ میں نے آج آدھی کتاب پڑھنی ہے، پڑھی نہیں جائے گی. زبردستی پڑھ لیں گے فائدہ نہیں ہوگا.
पढ़ी नहीं जाएगी तो नुकसान क्या होगा? एक तो पढ़ी नहीं गई, दूसरा आपको मोरल नीचे आएगा, यार मैंने तो ये सोचा था, ये तो हो नहीं सका, अंदर से आपकी ना डीमोरलाइजेशन शुरू हो जाएगी। ऐसे काम ना करें, मोरल आपका हमेशा बूस्टेड रहना चाहिए, ये याद रखें। इसमें नहीं, जिंदगी में मोरल बूस्ट करके रखें, अचीवेबल टारगेट बनाएं अपने लिए। आपका टारगेट कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है। आप मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप नहीं हैं, तो जब आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स यूएमएस पढ़ेंगे, आपको ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए, आप हो सकता है बहुत जल्दी समझ जाएं। अपने आप से कंपेयर करें, अपने आप को अपने फ्रेंड से कभी कंपेयर ना करें कि ये 4 घंटे पढ़ती है तो मुझे भी 4 घंटे पढ़ना है, कोई ज़रूरत नहीं। अपने आप को अपने आप से कंपेयर करें कि मेरे टारगेट अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि दाएं बाएं के बंदे क्या कर रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन? सर एवरेज स्टूडेंट कितने ऐसे कर सकते हैं? बेटा इसका जो मिनिमम टाइम है वो तो ये है ना कि आपको पीआरसी में आपको 2 महीने लग जाएंगे, 3 या 4 महीने लग जाएंगे, इतने ही लगने चाहिए। उसके बाद आपको कैप में अगर 8 पेपर है तो हम जनरली रिकमेंड करते हैं 3-3-2। जो अच्छा बच्चा है वो 4-4 भी दे देता है, 4-4 2 अटेम्प्ट में कर लेता है, फिर भी 1 साल तो लगेगा, 6 महीने बाद जब आती है तो मैंने थोड़ा चेंज किया। और अगर 3-3-2 करते हैं तो 1.5 साल लग जाएगा, ठीक है, 1.5 और 3 तकरीबन 2 साल हो गए। और 2 साल बाद आपकी आर्टिकल शुरू होगी, वो भी तकरीबन 3 साल की भी है, तो 5 साल तो लगेंगे आप। लेकिन आर्टिकल में आपने याद रखना है, लोग आपको डराते हैं कि 5 साल लग जाते हैं सीए में, तो सीए ना करो। मेडिकल में कितने साल लगते हैं? 5 या 6। इंजीनियरिंग में, बीएससी इंजीनियरिंग में कितने साल लगते हैं? 5 या 6। बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में कितने लगते हैं? 4। ठीक है, लेकिन आपका जो कैप के बाद अगले 3 साल शुरू होते हैं, उसमें आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाती है। आपको जिस जॉब में जाते हैं वहाँ से आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है 35-36 हज़ार। आप ये समझें कि जॉब शुरू हो जाती है छोटी सी। एक बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जब बीए करता है, उसके बाद कितनी जॉब पे जाता है? 35-40 हज़ार पे जाता है ना, लेकिन उसकी बेस इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती। आपको पता है कि बैचलर में पाकिस्तान में क्या पढ़ाया जा रहा है, सिवाय 2-4 अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के। वो बूस्ट भी करता है अपने कैरियर के एंड में, 5 साल 8-10 लाख में बैठा होता है। आप शुरू ही 3 लाख से करते हैं तो आप तो 50-60 लाख पे भी चले जाते हैं। तो जितना उनकी पहली सैलरी होती है बैचलर करने के बाद, उतना आपका स्टाइपेंड होता है। और ड्यूरिंग सीए, तो जब आप सीए क्वालिफाई कर जाते हैं तो एकदम से 40-50 हज़ार से जंप करते हैं 2 लाख पे, 2.5 लाख पे। तो याद रखना है कि ये नहीं सोचना है कि सीए 5 साल का, ये सोचना है कि सीए तो सिर्फ 1.5 साल का है, उसके आगे तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। साथ पेपर देने हैं तो दे देंगे, आपको पैसे मिल रहे हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है, और प्लस आपने पेपर देने में पेपर आसान भी हो जाता है क्योंकि वो काम आप कर रहे हैं वही काम पेपर में भी आ रहा होता है। और कुछ आप अलाइड हो चुके होते हैं तो आप पेपर इतने मुश्किल नहीं रहते हैं। अगर आप टिक के तैयारी करें, प्रैक्टिकल एक्सपोजर साथ होता है, साथ आप थ्योरी भी पढ़ लेते हैं तो मुश्किल नहीं रहता। तो ये याद रखना है कि तकरीबन आप कम से कम 5 साल है, लेकिन इसे ज़हन में रखिए कि हर चीज़ में तकरीबन 5 साल लगते हैं ऐसे। तो ये कोई अनड्यूरिंग प्रोलॉन्ग पीरियड नहीं है सीए जैसे लोग डराते हैं, ये याद रखते हैं। और सबसे बड़ा जो लोग डराते हैं होता नहीं है, 5 साल होने के बाद भी नहीं होता। एक तो पहली बात है कि क्यों नहीं होता, मैंने आपको बता दिया, हम उससे डिस्कस करने के बाद में उसकी रीज़न क्या ना होने के। अगर आप तरीके से पढ़ने के लिए मैंने 4 चीज़ें बताई हैं तो 99% चांस है कि अल्लाह ताला की मदद साथ हो तो हो जाता है। खुदा ना खासा नहीं भी होता तो आपने 3 साल कैप तो कर ही लेंगे इंशाल्लाह, 3 साल की आर्टिकल हो जाएगी, उस आर्टिकल की बेस पर आपको 70-80 हज़ार की जॉब मिल जाती है। और फिर चूँकि आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है, प्रोसेस से गुजरे होते हैं, तो आपका कैरियर फिर भी बन रहा होता है। एक सीए अगर ले रहा 6 लाख तो आप ले रहे होंगे 2-2.5 लाख, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही जॉब नहीं मिलती। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सीए में क्या है? प्रैक्टिकल एक्सपोजर। जब आप सीए करके निकलते हैं तो आपके अंदर स्किल्स होते हैं, एक्सपीरियंस होता है, जो कि और डिग्री में नहीं होता। बैचलर करके निकलेंगे तो आपसे कुछ थियोरेटिकली स्ट्रॉन्ग है, वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी के हालात है। और प्रैक्टिकल एक्सपोजर तो है ही। हम देखते हैं ना, बीएससी के बच्चे को बुलाते हैं, कभी कभी उसमें इंटरव्यू करते हैं, सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट नहीं आते और कहने को बीएससी इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करके आया होता, आप उससे बहुत आगे होते हैं, याद रखें, ठीक है। तो अब ये ध्यान में रखेंगे तकरीबन 5 साल, लेकिन इन 5 सालों में पूरी सिर्फ स्टडी नहीं हो रही, साथ अर्निंग भी शुरू हो चुकी होती है और साथ आपका एक्सपीरियंस भी शुरू हो चुका होता है। तो ये बड़ा ब्लेंड बनता है, बड़ा मिक्स बनता है तीनों चीज़ों का। ज़हनी तौर पर तैयार रहना इन चीज़ों के लिए, मैं इसलिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आपने लंबे पीरियड के लिए, खुदा ना खासा कभी कभी फेल होने के लिए और 1-2 चीज़ों के लिए तैयार रहना है, जिससे आपको डिमोरलाइज नहीं होना।
اور फेल आप उसी वक्त होंगे जब आपने इंसानों की तरह तैयारी नहीं की, अदरवाइज आप फेल नहीं होंगे, निकलते जाएंगे आप इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन क्लियर है? चलिए, तो इट्स ऑल राइट नाउ। इंशाल्लाह आपकी क्लासेस जल्दी शुरू हो जाएंगी। और पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन को पढ़ने का खुद ही पढ़ाया करता था क्योंकि बड़ा बेसिक कोर्स है और उसमें ही आपकी बेस बनती है, लेकिन अभी जो मैं बिजी होता जा रहा तो हमारी दूसरी टीम देखती है, लेकिन मैं खुद भी आपको असेस करूँगा फिर साथ साथ कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हो रहे हैं और क्या कहाँ किस साइड पर है। हमारी टीचर माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मैं तैयबा, वो खुद बहुत अच्छी टीचर है, लेकिन मैं खुद भी इंगेज रहता हूँ बच्चों के साथ। और मेरा जो दरवाज़ा है वो हमेशा ओपन होता है। अगर मैं फारिग बैठा हूँ, जब अपना काम कर रहा हूँ, मीटिंग नहीं चल रही, तो आप किसी से पूछे बगैर एनी टाइम मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, आपको लगता है कि यासर साहब से समझ लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, जो भी रीज़न है आप डायरेक्टली मेरे पास आ सकते हो। यहाँ पर मैं बिल्कुल ओपन हूँ। अगर मेरी कोई मीटिंग चल रही है, मैं बीच में खुद कह दूँगा बेटा मुझे 10 मिनट दे दो, बाद में आना, कोई गलत बात है, लेकिन जनरली मेरी कोशिश होती है कि बच्चा आए तो 2-4 मिनट अगर कोई पूछना चाहता है 5-10 मिनट तो मैं उसे टाइम दूँ। तो आपने हेजिटेट नहीं करना, जब भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला होगा, आप मेरे पास आ जाते हैं। क्लियर है जी? लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि दुनिया में, प्रोफेशन में कभी डायरेक्टली टॉप में नहीं जाना। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला चल रहा है, पहले जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है उससे बात करें, मसला हल नहीं होगा उससे एक लेवल ऊपर जाएँ, मसला हल नहीं होगा फिर एक लेवल ऊपर जाएँ, और आखिर में फिर टॉप बंदे के पास चले जाएँ। अगर आप पहली ही फुर्सत में सबको बाईपास करके टॉप के बंदे के पास जाएंगे ना, तो नीचे वाले लोग एरियन हो जाएंगे, वो कहेंगे इसने हमें बाईपास किया। तो जब तक कोई रीज़न ना हो बाईपास करने की, बाईपास नहीं करना है थ्रू हयाती हमें। और लेकिन जैसे वो मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ, मतलब कि आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, या उससे रिलेटेड चीज़ है, आपको लगता है मैं ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकता हूँ, फिर आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, फिर डायरेक्टली मेरे पास है। वो जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैनेजमेंट के जो इशूज़ होते हैं कि फीस का मसला बना हुआ है, आपने कोई रिक्वेस्ट की है, वो सुन ही नहीं रहा, उस केस में पहले उस बंदे से बात करें जो रिस्पॉन्सिबल है, जवाब नहीं आता तो फिर उससे ऊपर प्रायोरिटी भेजें मेरे पास, ठीक है? तो ये आप ध्यान में रखो, जो दुनिया में यही चलता है, सिर्फ जॉब में, बिजनेस में, प्रैक्टिकल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में यही चलता है कि आप नीचे वाले लोगों को बाईपास करके सीधा ऊपर जाएंगे ना, तो लोग आगे खिलाफ हो जाते हैं, और वो सही खिलाफ होते हैं, आपने बाईपास किया। ये कभी नहीं करना, ये अपनी आदत बनाएं, एक थ्रू प्रॉपर चैनल जिंदगी में चलना। क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? क्लियर है जी? इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ क्लास में भी जल्दी। सर, ग्लैंसिंग बैक इन पास्ट, जब आप ईयर्स 11-12 कोई ऐसी मिस्टेक जो आप कर रहे हो जो हमें बता सकें, ताकि हम उससे गाइड कर सकें। देखो बेटा, मैंने जो किया था वो तो बीएससी होता ही, वो तो स्कीम ही कुछ और थी। मैंने तो बैचलर्स के बाद सीए शुरू किया था, उसका एमएससी के बाद नहीं होता। यू शुड हैव बीन अ बैचलर, बीए, बीएससी, बीकॉम। तो मैंने तो बीकॉम के बाद किया था। अब मेरी एक क्लासेस कोई नहीं थी, मेरी तो आर्टिकल शुरू हो गई थी, पहले दिन से जॉब शुरू थी और साथ साथ मैंने पेपर किए। लेकिन अभी जो देखते हैं ना, पीआरसी में सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चे को ज़्यादा नहीं आती। एक प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा समझ नहीं पा रहा था चीज़ को, टीचर को बताता नहीं, खुद ही कोशिश करता है, नहीं समझता, कंफ्यूज होता है, लेकिन शायर होता है, टीचर को बताता नहीं है। बस यही और कोई रीज़न नहीं। बाकी टीचर आपको असेस कर लेता है, टीचर को अंदाजा हो जाता है कि कौन सा बच्चा किस लेवल पे है। उसके अलावा पीआरसी इतना आसान है, एमसीक्यू बेस्ड है सारा, और बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें हैं, कोई मुश्किल नहीं। पीएससी में जो ज़्यादा टफ समझा जाता है वो समझा जाता है क्यूएमएस, वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। अगर आपकी बेस नहीं है न्यूमेरिकल की, शुरू में आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन बड़ी बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक स्टैंड है उसमें, कोई लंबी चौड़ी मैथ स्टैंड नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो उस पर बैठ जाए, पूरा जोर लगाएं, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन। एक बार आप लाइन में चढ़ गए फिर मसला खत्म हो जाता है। शुरू के दिन बेहद इंपॉर्टेंट है। शुरू के दिन में अगर समझ नहीं आ रही तो टीचर की जान ना छोड़े, टीचर को बताएं, मुझे बताएं। जैसा टीचर को कहें, टीचर तो गाइड ही नहीं कर रहे, हमें प्रॉब्लम आ रही है, हम आपका हल निकाल रहे हैं, लेकिन मेहनत आप नहीं करते। याद रखें कि ज़िंदगी में भी आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट दे सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मेहनत तो आप नहीं कर रहे। कब्र में भी अपना अपना हिसाब होना है, आपके पेरेंट्स का अपना हिसाब है, आपका अपना है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो एक है, और वो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है कि आपको चीज़ समझ नहीं आ रही होती, आप लाइन नहीं हो रहे होते और आप किसी को बताते हो, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है, चीज़ नहीं समझ आ रही तो टीचर से बात करें, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे पास आते हैं, दैट्स इट। टाइम वेस्ट नहीं करना, एक दिन इंपॉर्टेंट है, तो दिन वेस्ट नहीं करना, दैट्स इट।
اور کوئی پرابلم نہیں ہے. میں آپ کو فرینکلی بتا رہا ہوں کہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ مجھے کتنے ایسے بچے ہیں جو ایف ایس سی میں 60% سے نیچے ہیں؟ ہے کوئی 70% سے نیچے, 80% سے نیچے, 70 to 80 کے درمیان, 90% سے نیچے. آپ کے کتنے مارکس ہیں؟ نیچے 90%. ایف ایس سی میں آپ نے 70% سے ابو نہیں ہے, اور سی اے میں آ کے پوچھ رہے ہیں کہ سر کیا پرابلمس ہوتی ہیں. کوئی پرابلم نہیں. ایف ایس سی میں H2O کیا ہوتا ہے؟ واٹر. یہ H4O ہو سکتا ہے. Why it is H2O? Why? جواب ہے آپ کے پاس؟ نہیں. اللہ نے بنا دیا, اللہ کا حکم ہے. کیوں H2O H3O کیوں نہیں H4O کیوں نہیں؟ تو آپ کو پڑھنا پڑتا ہے, آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں, اس پر آپ کو اپنی ایجوکیشن پہ خرچ کرنے چاہیے یا آپ کو ٹور پہ نکل جانا چاہیے آج, تو آپ کیا دیں گے؟ یہ سی اے. سی اے میں کوئی سائنس نہیں ہے. سی اے از این آرٹ. آپ کو سینیریو دیا جائے گا, آپ کو کہا جائے گا لا یہ کہتا ہے, اور یہ چیز ایسے ریکارڈ کرنی ہے. مجھے بتاؤ بہترین طریقہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ ادھر سے نکلے گا. آرٹ کیا ہوتی ہے؟ کریٹیوٹی, چیز کو کریٹ کرنا, جس میں کوئی اسٹینڈرڈ رول نہیں ہوتا. جو بہترین طریقہ آج ایک طریقہ ہے, کل اس سے بہتر طریقہ آ جائے گا, پرسوں اس سے بہتر آ جائے گا. لیکن H2O کا H4O تو کبھی نہیں کر سکیں گے. وہ تو آپ کو پڑھنا پڑے گا.